Okay, so next guys, what we are doing is we are starting with instruments that are related to foreign investors. Instruments related to foreign investors. Now, this is generally the area from where UPSC is a lot more interested in asking questions. So you can give this heading, instruments related to foreign investors. The very first instrument that we have here is ECB, external commercial borrowings. ECB, external commercial borrowings. Again, the nature of the instrument is all that matters to us, right? We don't want to know how exactly it is traded, right? वो सारा technicality में हम नहीं जाएंगे, right? What we are interested in knowing is what is ECB exactly? ये किस तरह का instrument है? External commercial borrowings, that is more important for us, right? So ECB क्या है, right? ECB is a form of commercial loan which is more or less in the form of bank loan only, but this bank loan comes from a foreign entity, right? So take the example of any Indian company. आप कोई भी Indian company उठा लीजिए, XYZ company. Now this XYZ company has taken a loan from a foreign entity, right? Foreign entity, and they have taken a loan for, let's say, 5 years. Right, at some rate of interest. At some rate of interest, right? So generally these entities that will take loans, right? ये जिस जो entities होंगी जो ये इस तरह के loans इस instrument में जाएंगी, these are going to be our commercial entities only, right? So what can I say about the nature of the instrument? I can say A, it is a debt instrument. It is a debt instrument. Equity तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, right? This is simply a debt instrument. Or I can say mostly in the form of bonds only. Mostly in the form of bonds only, right? Which has a fixed time period of maturity, right? Now the time period of maturity also here, right? Minimum average maturity time period is more than 3 years. So minimum average maturity time period is 3 years. 3 साल का एक एवरेज मेच्योरिटी टाइम पीरियड है कम से कम, जो हम देखते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स में जो प्रिवेल करता है, राइट? ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं देखने को मिलता, राइट? नाउ आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज सॉफ्ट लोन्स. ये सुना होगा, सॉफ्ट लोन्स, राइट? सॉफ्ट क्यों कहते हैं इन्हें? दीज आर सॉफ्ट लोन्स बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट मे बी वेरी लो एंड द टाइम पीरियड मे बी वेरी हाई, राइट? So certainly at times we find that this term, particularly soft loans, at times gets featured in newspapers, that this particular company, this particular entity has borrowed as a soft loan from, let's say, Bank of Japan, right? Or from any other foreign institution. So ये soft loan क्या है? This soft loan is nothing but ECB only, external commercial borrowing only, right? Where you find that the rate of interest remains quite low. रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम नज़र आएगा, राइट? अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में है ना, हम अगर बैंक से उधार लेने जाएंगे, एक मिनिमम रेट जो हमें मिलेगा, है ना, एज अ कमर्शियल एंटिटी इज़ गोइंग टू बी क्लोज टू 7%, 8%. उससे कम नहीं हो सकता, राइट? नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज आर रेपो रेट इटसेल्फ इज समवेयर क्लोज टू 5. वही 5 के आसपास अगर घूम रहा है तो भाई 6-7% से कम कैसे दे देगा लोन, राइट? But if you go to, let's say, America, you go to Japan, right, where repo rate itself is very low, right? The rate at which the Central Bank of Japan is able to give loan to banks in Japan, that rate itself is very low, and thereby the rate of interest there is going to be close to 0.5, 0.75, 1%, right? तो अपने आप हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तो बहुत ही कम है ना, क्योंकि वहाँ पर एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, एंड देयर बाय दीज कमर्शियल एंटिटीज विच आर सिटिंग इन इंडिया, दे मे बी इंटरेस्टेड इन रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम अब्रॉड, राइट? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट दे कैन यूज इज योर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ठीक है? सो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या है? एक्सटर्नल वर्ड अपने आप में डिनोट कर रहा है कि लोन्स हैं
है ना. कमर्शियल बोरोइंग्स लोन्स हैं, बट कहाँ से हैं? बाहर से हैं, राइट. सो दीज आर लोन्स फ्रॉम ओवरसीज लेंडर्स. These are loans from overseas lenders. These are loans from overseas lenders. So बाहर की एंटिटीज से लोन लिया है. So commercial loans in the form of bank loans or any other debt instrument like bonds from overseas lenders with a minimum average maturity time period of 3 years is called ECB, external commercial borrowing, and this instrument will have a very low rate of interest and on the other hand may also have very high time period of maturity. Now how is this instrument useful? हमारी इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट क्या होता है? What is the impact of ECBs on Indian economy? So this instrument helps in increasing our forex reserves. And I hope you understand, having more of forex reserves means that we have more of autonomy over our imports. हमारी और ज़्यादा autonomy रहेगी, है ना. We don't want the flight to fly away from India, right? हमारे पास फॉरेन कैपिटल होने का सिंपल ये मतलब ये है कि भाई हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए एम्पल अमाउंट में फॉरेन कैपिटल अवेलेबल है, ठीक है. नाउ व्हाट आर दीज एंटिटीज विच आर गोइंग टू बोरो, राइट. सो मेजरली जो एंटिटीज़ हैं वो डिफाइन की जाती हैं. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम विल डिफाइन विच सेट ऑफ एंटिटीज़ कैन बोरो यूजिंग ECBs एज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. सो इसमें हमारे पास अलग अलग तरह की कंपनीज आती हैं. So we have commercial entities here, we have SEZ, companies that are present in SEZ, we have housing finance companies, we have affordable housing project companies which can actually borrow under ECBs, ठीक है. So ये time to time period ये change होता रहेगा कि कौन सी set of companies भी allow की जा रही हैं, ठीक है. सबसे important बात, which regulator is going to regulate this instrument? So यहाँ पे एक trick है that you can remember. If anywhere forex is involved, अगर कहीं पर भी forex का inflow involved है कंट्री में, ठीक है, forex का inflow involved है, then RBI will definitely be involved here. Then RBI will be involved here, right? So RBI regulates ECB market in India and it regulates with complete autonomy. यहाँ पर और कोई रेगुलेटर प्रेजेंट नहीं है. दैट इज वाई, राइट, कंप्लीट रेगुलेशन किसका है? RBI का ही है. ओके, सो लेट मी राइट द लिस्ट ऑफ कंपनीज करेंटली सेक्टर्स विच हैव बीन अलाउड टू बोरो अंडर ECBs. First is all corporate entities. All corporate entities. So all companies which are registered under Companies Act, right, as corporates, they can borrow using ECBs. Then SEZs, special export promotion zones, या special economic zones. So ऐसी companies जो export imports में involved है, right, these companies they can also borrow using ECBs. Then NGOs in microfinance, again remember microfinance companies are the ones which are the backbone of your rural economies at times, right. ये क्या करते हैं? ये आपकी रूरल इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करते हैं by giving them small valued loans, right. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एक्टिविटीज़ भी जनरेट करेंगे, ग्रुप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एक्टिविटीज़ भी जनरेट करेंगे. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज अलाउड NGOs एंड माइक्रो फाइनेंस ऑल्सो टू बोरो अंडर ECBs. सिमिलरली लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट कंपनीज, they can also borrow under ECBs. So time to time government will keep increasing this ambit if it feels that the sector is in need of funds, right. कुछ एक स्पेशल पुश की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल फंड्स की रिक्वायरमेंट है,
सो ऐसे में सेक्टर्स को ओपन कर दिया जाता है, ठीक है। याद ये रखना है दैट आरबीआई इज गोइंग टू रेगुलेट दिस पर्टिकुलर मार्केट, ईसीबी मार्केट in India with complete authority. Okay, the next instrument that we have is foreign currency convertible bonds. Now I want you to clearly pay attention over the name of the instrument. The name is foreign currency convertible bonds. If you remember, if you go back in the lecture itself, I did talk about convertible bonds. है ना, हमने बात की थी convertible bonds की. एक बार ज़रा recap देख लेते हैं. So convertible bonds क्या हैं? Convertible bonds are those instruments which may begin as bonds, but at a later date the company is giving a window of opportunity to the investor. So let's say after 3 years, 5 years, 6 years, एक window of opportunity है that the investor here can now convert this into debenture or may like to convert this into equity if the investor seems pleased with the company. Investor जो है satisfied है कि भाई कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, based on the past performance he has a window of opportunity where he can convert this bond into debenture or into equity. कंपनी के शेयर्स में तब्दील कर ले या डिबेंचर में तब्दील कर ले, जो भी कंपनी जो है अलाउ कर रही है, राइट। यही है डेफिनेशन ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड. बट दिस इज नॉट जस्ट कन्वर्टेबल बॉन्ड. ये कैसा कन्वर्टेबल बॉन्ड है? दिस इज अ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, राइट. Foreign currency convertible bond. Now this itself is telling you that this instrument is meant for foreign investors, है ना. ये instrument किसके लिए है? ये है foreign investors के लिए. So investors sitting in Japan, US, Europe, right? What they can do is they can purchase these convertible bonds of an Indian company, right? And then Indian company can raise funds from outside using this particular instrument. तो मान लीजिए कोई भी हमारे पास इंडियन कंपनी है, राइट, लेट्स से XYZ कंपनी है, एंड दिस कंपनी डिसाइड्स टू गो फॉर FCCBs, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. सो लेट्स से दे इशू द इंस्ट्रूमेंट इन 2020, ना 2020 में इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हैं, राइट, तो आप हम अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में ही आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी कंपनी में, where the instrument will begin as a bond, which means it will begin as a debt instrument. जो इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत हो रही है वो डेप्ट से हो रही है, राइट. एंड देन द कंपनी विल स्टेट आउट दैट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 5 years, ये चेंज कर सकता है, ये वेरी कर सकता है, राइट, दैट आफ्टर 5 years, 3 years, 8 years, whatever, right, we give you this opportunity that you can convert whatever is your maturity amount directly into equity. आप हमसे पैसा लेने के बजाय आप क्या करिए, आप उसको तब्दील करा लीजिए शेयर्स में, राइट. यू कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, यू कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ आवर कंपनी, राइट. सो इंस्ट्रूमेंट विच बिगिंस एज अ डेब्ट नाउ गेट्स कन्वर्टेड इनटू equity based instrument, and this is the unique aspect about foreign currency convertible bond. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो शुरू तो डेब्ट के फॉर्म में हुआ लेकिन लेटर स्टेजेस में कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? इक्विटी के फॉर्म में, राइट. सिंपल वर्ड्स में कहें, सो दीज आर बॉन्ड्स इशूड बाय एन इंडियन कंपनी टू फॉरेन इन्वेस्टर्स सिटिंग अब्रॉड टू रेज फंड्स फ्रॉम देम, एंड बिकॉज दीज आर फॉरेन इन्वेस्टर्स, दैट इज वाई दे आर एक्सप्रेस्ड नॉट इन टर्म्स ऑफ रुपी बट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. तो यहाँ पर कंपनी जब बॉन्ड्स बेचने जाएगी तो रुपी में नहीं मांग रही है, कह रही है कि हमारा एक बॉन्ड $100 का है, $100 का है, राइट. सो दे विल बी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी. लेटर एट अ सर्टेन टाइम पीरियड, राइट, द कंपनी प्रोमिसेस दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स और दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, राइट. अब सिंपल अगर देखें कि भाई इस इंस्ट्रूमेंट को रेगुलेट कौन करेगा, राइट, हु इज गोइंग टू रेगुलेट दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, वही ट्रिक यूज करते हैं अपनी, राइट. सो आई टोल्ड यू इफ देर इज फॉरेक्स इन्वॉल्व, अगर फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, राइट, देर हैज टू बी RBI प्रेजेंट हियर. सो जब ये बॉन्ड्स बेचे गए, राइट, फॉरेन करेंसी कंट्री में एंटर करेगा, इनफ्लो होगा, विच मीन्स RBI विल डेफिनेटली बी इन्वॉल्व हियर. सो RBI एज अ रेगुलेटर विल बी सिटिंग. बट आई सी वन मोर थिंग, एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि भाई एट अ लेटर डेट, है ना,
हम इसको डेप्ट से इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग दिस इनटू शेयर्स। और शेयर मार्केट का रेगुलेटर कौन है? कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है हमारे पास सेबी, which means that this instrument will be regulated by both RBI as well as SEBI jointly। इस इंस्ट्रूमेंट को दोनों ही एंटिटीज जो है वो रेगुलेट करेंगी, राइट। सो दिस इज अ इंटरनेशनल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक ECB, but with the feature that it can later be converted into equity, and that is why we have two regulators present here. We have RBI present and we have SEBI present as regulator to regulate this instrument. Okay guys, so next set of instrument that I want to discuss is depository receipts, DRs. Depository receipts, popularly called as DRs. Now using this instrument, an Indian company sitting in India can actually raise funds from abroad. So the company simply needs to deposit its shares in a domestic bank in India. It can deposit its shares in a domestic bank in India. So let me assume any Indian company, XYZ company. This company wants to raise funds from abroad, from foreign investors. So it deposits its shares in a domestic bank. Let's say SBI, State Bank of India. State Bank of India, right? Now the State Bank of India will instruct a foreign depository, that if foreign depositors come to them, to invest into this company, then it can simply issue receipts against their investments, right? So ये इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, right? अगर हम सिंपल भाषा में देखने की कोशिश करें, this instrument is actually allowing Indian companies sitting in India to raise funds from abroad, from foreign depositors, without actually the need to travel abroad or to get listed on that foreign stock exchange, है ना। आपको जो है अमेरिका में जाके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर करने की कोई नीड नहीं है, कोई लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया बैठे रहिए, राइट। आप अपने शेयर्स लेके जाइए अपने खुद के डोमेस्टिक बैंक के पास कि सर ये रहा मेरा, है ना, 10% ऑफ माई स्टेक ऑफ माई कंपनी, राइट। यू हैंड देम ओवर द शेयर्स एंड नाउ दिस डोमेस्टिक बैंक इज गोइंग टू इंस्ट्रक्ट द डिपॉजिटरी विच इज सिटिंग इन अमेरिका, राइट। जो अमेरिका में बैठी हुई डिपॉजिटरी है उसको निर्देश दे रही है कि अगर आपके पास अमेरिकन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इफ़ यू गेट अमेरिकन इन्वेस्टर्स विच वांट टू इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, यू टेक देयर इन्वेस्टमेंट, आप डॉलर ले लेना, एंड अगेंस्ट देयर इन्वेस्टमेंट यू इशू डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, है ना, रिसिप्ट्स विच आर बीइंग इशूड बाय अ डिपॉजिटरी, एंड हेंस द नेम डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, राइट। सो डॉलर का फ्लो कैसा होगा? डॉलर विल बेसिकली बिगिन फ्रॉम हेयर, फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर टू फॉरेन डिपॉजिटरी, and from foreign depository to bank, and then obviously in the middle way this will get converted into rupee when it reaches to Indian company. तो भारतीय कंपनी को क्या मिल गया, राइट, बाहर से इन्वेस्टमेंट मिल गया, बाहर से निवेश मिल गया और बाहर जाना भी नहीं पड़ा, राइट। नाउ रिमेंबर वन थिंग, दैट इफ दिस फॉरेन डिपॉजिटरी इज अमेरिकन, अगर ये फॉरेन डिपॉजिटरी अमेरिकन है, then this depository receipt is called ADR, American Depository Receipt. If this depository is anything other than American, let's say European, Latin America, जो भी आप कहो, right, then this is called as GDR, Global Depository Receipts. So अगर अमेरिकन है then American Depository Receipts ADR, राइट। मान लीजिए यूरोपियन है तो GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। नाउ राइट, यू हैव अंडरस्टूड द इंस्ट्रूमेंट, आपने इंस्ट्रूमेंट समझ लिया, राइट। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आई वांट यू टू ब्रेक दिस डाउन एंड टेल मी, राइट, which set of regulators do you think will be regulating this market, will be regulating this instrument?
यहाँ पर कौन से ऐसे रेगुलेटर्स प्रेजेंट होंगे, राइट. सो गाइज देयर आर 3 एंड्स हियर दैट वी नीड टू इवैल्यूएट, राइट. सी आई एम श्योर यू मस्ट हैव आइसोलेटेड दिस पर्टिकुलर एंड. दिस इज वेयर फॉरेक्स इज फ्लोइंग इनटू द कंट्री, क्योंकि फॉरेक्स इन्वॉल्व है, फॉरेक्स इज इन्वॉल्व हियर, thereby regulator RBI will definitely be involved. One end is this where shares equity are involved, right. There has to be some regulator which can vouch, which can say that yes, I know that these shares equity kept by the company with the bank is authentic enough, right. So यहाँ पर कौन involve होगा? From our end SEBI will be involved, Indian company, Indian bank, SEBI will be involved. But there is one more end, right. ये भी एक एंड है जहाँ पर फॉरेन डिपॉजिटर्स हैं एंड वी हैव अ फॉरेन डिपॉजिटरी. रिमेंबर डिपॉजिटरी इज एन एंटिटी विच होल्ड्स इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, राइट. जैसे बैंक्स आपका मनी होल्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, सिमिलरली डिपॉजिटरीज आर ऑल्सो होल्डिंग एंड दे आर हेल्पिंग इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ऑफ दीज एक्विटीज, राइट. सो फॉरेन डिपॉजिटरी, फॉरेन डिपॉजिटर्स के बीच में हमें क्या चाहिए? वी ऑल्सो नीड अ रेगुलेटर हेयर, राइट. So foreign capital market regulator will also be involved here. Foreign capital market regulator will also be involved here, right. So we have these three entities, 3 regulators. Now let's say in the exam hall they give us a question regarding this instrument only, right. They say consider the following statements regarding depository receipts, and they give us a statement that RBI and SEBI jointly regulate depository receipts. RBI and SEBI jointly regulate depository receipts. Statement correct, incorrect? Remember that statement is correct. Statement जो है वो सही है, right? क्योंकि कहीं पर भी ये mention नहीं कर रहे हैं only, even if they mention only, right? Still it is correct because this is a foreign capital market regulator. This is outside our jurisdiction. हमारा jurisdiction यहाँ तक है, right? So SEBI and RBI are the 2 regulators that are regulating this instrument, ठीक है. Now on similar lines we also have something called as IDR. ऐसे ही similar lines पे हमारे पास एक instrument और है जिसका नाम है IDR, Indian Depository Receipts. Indian Depository Receipts, IDRs. One thing is certain that if this is Indian depository receipt, then the depository that must be present here must be Indian. So हमारे पास यहाँ पर जो depository होनी चाहिए वो एक Indian depository होनी चाहिए. It should be an Indian depository, right? Now we have 2 depositories in India, NSDL and CDSL. So दोनों में से कोई भी हो सकता है, right. And this Indian depository must be taking in investments from Indian investors, which are investing in terms of rupee, right. यहाँ तक तो स्टोरी बिल्कुल क्लियर है. So this will simply issue Indian depository receipts to Indian investors which are investing in terms of rupee, right. But investment raise कौन कर रहा होगा, right. The investment must be raised by some foreign company. So foreign company is raising investment by keeping its equity with its own domestic bank, right. तो एक फॉरेन बैंक है, वहाँ का अपना कोई डोमेस्टिक बैंक है उनका, राइट. हमारे लिए फॉरेन बैंक हो गया, उनके लिए डोमेस्टिक बैंक हो गया, जिसके पास वो इक्विटी रख रहे हैं. इक्विटी रखा, राइट. एंड नाउ दिस बैंक इज गोइंग टू इंस्ट्रक्ट द इंडियन डिपॉजिटरी टू इशू डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स टू इंडियन इन्वेस्टर्स अगेंस्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है. Now which entity is going to regulate this particular instrument? Question है which entity, right, which regulator will be present to regulate this particular instrument? So I think guys you must have figured this out. Now there are again 3 regulators involved here.
बट ये 3 है ना, अब डिफरेंट है. सो एट दिस एंड फॉरेन capital market regulator is involved, whichever that regulator is, it will be based on the foreign company itself, from which country this company belongs to. Then at this end foreign currency regulator will be involved. See, in our country the regulator for banks and foreign currency is the same, but in other countries it may not be the same proposition. So foreign currency regulator will be involved here, and on this end SEBI will be involved here. On this end SEBI will be involved. ठीक है. सो अगर कहे कि IDRs को रेगुलेट करता है SEBI, राइट, द इंस्ट्रूमेंट IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, आर रेगुलेटेड बाय SEBI. स्टेटमेंट करेक्ट, इनकरेक्ट? द स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट, बिल्कुल सही है. Okay, so guys, next instrument that we are going to start with is derivatives. Now a lot of times we have seen questions being asked directly from these set of instruments. Okay, so this becomes important from exam again. They can ask you what is the nature of the instrument, they can ask you regarding the regulator of the instrument. ठीक है, तो इसके बारे में जो factual details हैं वो आपको clearly पता होनी चाहिए. Now derivatives, remember, it is a financial instrument whose value itself is going to depend on some underlying asset. तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी अपनी कोई खुद वैल्यू नहीं है. ठीक है. सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स दे डू नॉट हैव any independent value. तो सर वैल्यू कैसे इस्टेब्लिश होगी, क्योंकि ट्रेडिंग तो हो ही रही है, राइट. सो देयर वैल्यू इटसेल्फ इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ द अंडरलाइंग एसेट. इफ द डिमांड इज टू हाई, ऑब्वियसली द वैल्यू ऑल्सो विल रिमेन हाई. मान लीजिए अगर अनुमान गलत लग गया, राइट, कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट इन टाइम में वैल्यू हाई जाएगी लेकिन नहीं गई, राइट, देन वैल्यू विल रिमेन लो, राइट. सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट वैल्यू. देयर वैल्यू इज गोइंग टू डिपेंड ऑन सम अदर एसेट इन इटसेल्फ. Now this underlying asset है ना, इसकी जो dependable है, so ये underlying asset itself can be anything. It can be shares, it can be some commodity, agricultural commodity, some metal, right, some natural resource, even foreign currency at times, right. And based on that this instrument will change names, है ना. तो इसके सब categories हैं हमारे पास. We can have derivatives which are based on agricultural commodities. We can have derivatives which are based on natural resources like gas, coal, right, crude oil even. Then we have derivatives where the underlying asset is stock, shares. So उसके basis पर इसके नाम बार बार जो है change हो जाएंगे, right. But before I take you to those commodities, those instruments, let me first simply help you understand that what exactly is going to be a derivative. So let me help you understand this through an example, and let's take the example of a futures contract. Example लेते हैं futures contract का, जो कि अपने आप में सबसे सिंपल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दैट एट टाइम्स when there is too much of inflation in the market regarding some agricultural commodities, government takes the decision of banning futures trading of that commodity. For example, अगर मार्केट में हमारे पास अनियन जो है उसके प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल हैं, बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बहुत इंक्रीज देखने को मिल रहा है ना, सभी तुरंत ये डिसीजन लेता है टू स्टॉप द ट्रेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन अनियन. तो जितने भी आपके पास इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर कमोडिटी से बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनकी ट्रेडिंग को एकदम कंप्लीट बैन कर देगा फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days, 15 days एट्सेट्रा. ठीक है. तो ये हो क्या रहा है, व्हाट इज एग्जैक्टली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, और बैन करना क्या क्या बेसिकली पॉसिबिलिटी डिनोट कर रहा है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, राइट. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड विच विल हैव सम काइंड ऑफ अंडरलाइंग एसेट, राइट. सो ये अपने आप में एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बन गया. दिस इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट whose value is going to fluctuate based on some underlying asset. Derivative instrument जहाँ पर हमारे पास कोई underlying asset हो, ठीक. So underlying asset, let me assume underlying asset in itself is
सम कमोडिटी, सिंप्लिसिटी के लिए अनियन ही ले लेते हैं, अनियन, टोमेटो, व्हाटएवर, राइट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सिंपली इज एन अग्रीमेंट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट. इट इज एन अग्रीमेंट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट. अंडरलाइंग एसेट हेयर इज अनियन. तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉप कर रहे हैं, जैसा आपने देखा ये कॉन्ट्रैक्ट, राइट. एक कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉप कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है ना, कि दैट आई अग्री टू बाय दिस मच क्वांटिटी ऑफ अनियन, लेट्स से 100 kgs ऑफ अनियन ऑन सम स्पेसिफाइड डेट ऑन सम स्पेसिफाइड प्राइस. सो एक ऐसा अग्रीमेंट है ना जिसमें बाय या सेल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है और अंडरलाइंग एसेट के रिस्पेक्ट में 3 चीज़ें मेंशन है. इस अग्रीमेंट में क्या क्या मेंशन्ड है? सो लिखा हुआ है बाय और सेल, राइट. दिस मच kg ऑफ, लेट्स से x kg ऑफ द अंडरलाइंग एसेट विच इज अनियन at this particular price, so rupees y per kg on this particular date. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे बाय या सेल, जो भी हो, राइट. अगर बाय है तो नीचे साइन कर देगा जो बाय करने वाली एंटिटी होगी, बायर विल बेसिकली साइन इट. सेल है तो सेलर इज गोइंग टू साइन दिस एंटिटी, है ना, विल साइन दिस डॉक्यूमेंट. नाउ दिस बिकम्स अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. ये बन गया फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. लेट मी फिल इन द डिटेल्स ऑल्सो. सो हम कहते हैं, लेट्स से दैट वी आर फॉर्मुलेटिंग दिस अग्रीमेंट टुडे एंड दिस अग्रीमेंट परटेन्स टू, लेट्स से, सम लेटर डेट. सो x kgs में x हमने अज्यूम कर लिया, लेट्स से इट इज 100 kgs. प्राइसेस में हमने अज्यूम कर लिया, लेट्स से y इज ₹20 पर kg, है ना. डेट में हमने अज्यूम कर लिया सम लेटर डेट, है ना. 3 महीने की डेट हमने ले ली, मान लीजिए, या 2 महीने की डेट हमने ले ली. सो टुडे इज़ व्हाट, 3rd of August, है ना. सो लेट्स से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. सो 3rd of October 2022, 3rd of October 2022, ठीक है. तो ये बन गया फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, है ना. और इसमें भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये सेल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है. बाय हटा देते हैं. सो सेल 100 kgs ऑफ अनियन एट 20 पर kg ऑन दिस पर्टिकुलर डेट. सेलर ने साइन कर दिए, राइट. फार्मर ने साइन कर दिया कि भाई हम इतना सेल कर देंगे. अब ये बन गया डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, राइट. नाउ आई कैन सिंपली बाय दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आई कैन ऑल्सो एंगेज इन फर्दर ट्रेडिंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली खरीद लूँ ये इंस्ट्रूमेंट. हमने खरीद लिया ये इंस्ट्रूमेंट. सो जो भी इसे होल्ड करता है उसके पास, राइट, ये राइट है. दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल होल्ड्स द राइट टू बाय दिस मच kgs ऑफ अनियन फ्रॉम दिस सेलर ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एट दिस प्राइस, राइट. So now you can understand as the value of underlying asset will increase, right. For example, let's say there is shortage of onion in, let's say, 1 month, 2 month of time period. Automatically I can sell this contract for a very high value, है ना. So इस contract, इसकी अभी अपनी कुछ value नहीं है. ये तो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो डायरेक्टली सेलर को पैसा देंगे हम. कितना पैसा देंगे? 20 into 100, 20 into 100, है ना. So 2000 रुपीज़ हम इसको देंगे, राइट. बट आई कैन स्टिल सेल दिस कॉन्ट्रैक्ट, राइट. सो मान लीजिए मैं एक ट्रेडर हूँ, सो मैंने इसको खरीद लिया, राइट. नाउ आई टेक दिस कॉन्ट्रैक्ट टू अर्बन मार्केट्स. मैं गया अर्बन मार्केट्स में, राइट. आपने देखे होंगे सब्जी मंडी, दीज एग्रीकल्चरल मार्केट्स इन अर्बन एरियाज. सो आई टेक दिस टू अ मंडी, राइट, एंड देयर आई सेल इट ऑफ टू अ होलसेलर हु इज डीलिंग इन अनियंस, एंड आई टेल हिम दैट सी दिस ईयर द क्रॉप इज नॉट गोइंग टू बी गुड. इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट देयर माइट बी शॉर्टेज ऑफ अ कमोडिटी. जब आप इस कमोडिटी में डील कर रहे हो इसकी शॉर्टेज हो सकती है. नाउ आई एम गिविंग यू अ वे आउट. आई विल मेक श्योर दैट यू हैव सप्लाई ऑफ दिस कमोडिटी सो दैट यू कैन ट्रेड इन द फ्यूचर. आप फ्यूचर में जाके इसको ट्रेड कर सकते हो. उसके लिए मैं आपके पास सोल्यूशन लेके आया हूँ. सो यू बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मी
right, which will make sure that you have supply of at least 100 kg of onions. Price भी guaranteed है 20 per kg, right? So let's say I sell this contract for rupees 5 per kg, है ना? मैंने इसकी जो वैल्यू रखी वो रख दी रुपीज़ 5 पर के जी कि मुझे ये चाहिए. आप 5 पर के जी के हिसाब से प्राइस दे दो, 100 के जी का है, सो यू गिव मी 500 रुपीज़ एंड आई गिव यू दिस कॉन्ट्रैक्ट. आप जैसे ही खरीदेंगे ऑटोमेटिकली नाउ यू होल्ड द राइट टू बाय इट. सिमिलरली नाउ यू कैन ऑल्सो एंगेज. मान लीजिए आपने खरीदा, अब आपने आगे जाके इसे और बेच दिया, राइट? आपने इंक्रीज़ कर दिया, आपने कहा 7 पर के जी, 8 पर के जी, 9 पर के जी, 10 पर के जी. नाउ सी व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज लेट्स से आई मीन समवेयर द बक इज गोइंग टू स्टॉप. मान लीजिए जिसके हाथ में ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, फाइनली दैट पर्सन हैज़ एक्चुअली परचेज्ड इट एट रुपीज़ 10 पर के जी, रुपीज़ 10 पर के जी. सो एक तो प्राइस देगा वो फार्मर को, बायर मतलब जिससे खरीद रहा है सेलर से, राइट? और दूसरा इस कॉन्ट्रैक्ट का पैसा लिया है, राइट? सो ओवरऑल हिज कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ द क्रॉप इटसेल्फ, जो बेस है अभी, राइट, दैट स्टैंड्स एट रुपीज़ 30 पर के जी, है ना? तो भाई 30 से कम तो नहीं बेच सकता एटलीस्ट, वो तो बेस प्राइस हो गया मार्केट में, राइट? ना सी जनरली व्हाट हैपेंस इज व्हेन देयर इज टू मच ऑफ आई मीन ट्रेडिंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इट क्रिएट्स वॉलेटिलिटी इन प्राइसेस. ये अपने आप में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव गॉन टू द फार्मर हिमसेल्फ एंड आई हैव प्रोक्योर्ड, राइट, लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स. मैंने जो है बहुत सारे बाय कॉन्ट्रैक्ट्स उससे खरीद लिए हैं या सेल कॉन्ट्रैक्ट्स उससे खरीद लिए हैं, ठीक, 3 महीने की लेटर डेट पे, और मैंने ये अर्बन एरियाज़ में जाके सेल ऑफ करती है फॉर सम प्रॉफिट, 5 पर के जी, 8 पर के जी, 9 पर के जी, 10 पर के जी. तो हम जिसको जो बता पाए, जिसको जितना समझा पाए, है ना, जिसको जितनी झूठी सच्ची कहानी बता पाए, उसके बेसिस पे वी हैव सोल्ड दिस, राइट? एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंट सेट ऑफ होलसेलर्स दे हैव बॉट इट. नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल स्टार्ट टू रियलाइज दैट वट एवर आई हैव टोल्ड देम, जो भी मैंने कहानी समझाई है कि क्रॉप फेलियर हो जाएगा, है ना, क्रॉप नहीं आएगी, दे स्टार्ट टू रियलाइज दैट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, एंड देयर बाय दे एस्टिमेट आउट दैट दे आर गोइंग टू फेस अ लॉस. आने वाले समय में क्रॉप तो होगी, राइट, और लॉस का प्रोपोजिशन बन जाएगा बिकॉज मार्केट प्राइसेस विल रिमेन लो. सो व्हाट विल दे स्टार्ट डू, राइट? मान लीजिए, है ना, आपको पता है कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट इन टाइम में आपको लॉस होने वाला है, तो आप आज क्या करेंगे, राइट? यू विल ट्राई एंड कॉम्पनसेट फॉर दैट लॉस बाय इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट मार्जिन्स टुडे. आप आज ही अपने प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर देंगे, राइट? सो जैसे आपने इंक्रीज किया, this will result into increase in market prices of the commodity today itself, and that is why regulators at time may ban this particular instrument, because this is helpful in not just reducing the prices today but also futuristic prices. ये फ्यूचर में भी प्राइसेस को लो रखेगा और आज भी, है ना, प्राइसेस को लो रखेगा. जितने ज़्यादा ट्रेडिंग होगी उस हिसाब से और ज़्यादा जो है जो बेस प्राइस है वो बढ़ता चला जाएगा इसका, ठीक है? सो हमें क्या याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू द इंस्ट्रूमेंट? ये तो ट्रेडिंग एस्पेक्ट हो गया, राइट? वी हैव टू रिमेंबर दैट डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज गोइंग टू डिपेंड ऑन सम अंडरलाइंग एसेट, वेयर अंडरलाइंग एसेट इटसेल्फ कैन बी शेयर्स, कमोडिटीज, कैन बी फॉरेन करेंसी, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? एंड दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी कॉल्ड डेरिवेटिव इफ देयर आर 3 थिंग्स मेंशन्ड ऑन इट कंपल्सरली. 3 चीज़ें इसमें होनी ही चाहिए, है ना? अगर ये 3 चीज़ें मुझे दिख रही हैं तो इसका मतलब ये एक फ्यूचर्स या फिर ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है. 3 चीज़ें क्या होंगी? I will have some specified quantity, I will have some specified quantity, I will have some specific price, and I must have some specified futuristic date. तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पर आपको ये 3 चीज़ें नज़र आए, क्वांटिटी लिखी हुई है, प्राइस लिखा हुआ है, कुछ स्पेसिफिक डेट लिखी हुई है, इसका मतलब वो सिंपली आपका डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? रिमेंबर दिस प्लीज. ओके, नाउ लेट मी टेक यू टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, राइट? लेट मी डिस्कस द वेरी फर्स्ट टाइप विच इज फाइनेंशियल फ्यूचर्स. फाइनेंशियल फ्यूचर्स, फाइनेंशियल फ्यूचर्स, जैसे टर्म फाइनेंशियल दिखा, remember the underlying asset here is going to be equity or shares. Equity or shares, right?
बाय सेल दोनों हो सकता है, सही हो गया। बाय क्वांटिटी चाहिए, सो 100 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स एट, राइट, कोई स्पेसिफाइड प्राइस चाहिए, सो एट ₹120 per share, and I also need a specified date on, let's say 15 दिन बाद की ले लो, 20 दिन बाद की ले लो, महीने भर की ले लो, right, whatever it is, right, so let's say 3rd of September 2022. Now this becomes a financial future. ये बन गया हमारा financial future, simple, right. Now you have to understand one thing, right, that when we are dealing with derivative instruments such as financial future, we are actually engaging into long term speculation, है ना। आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पर, एक तो हुआ कि हम आज मार्केट में गए और हमने आज जो है टाटा मोटर्स के शेयर खरीद लिए, राइट, तो कोई स्पेकुलेशन नहीं है, हमने जो मार्केट में परिस्थिति देखी, वट एवर इज द सिचुएशन इन द मार्केट, वट एवर इज माई इनसाइट, राइट, वट एवर आई हैव researched about the company, according to that I have bid and I have purchased it today, right, almost like walking into a race course, right, based on the horses that are going to run in the race, right, based on their performances, based on whatever their strength, whatever their research that I have done about them, I have bid on a particular horse today itself, कि भाई probability इसकी ज़्यादा लग रही है जीतने की, है ना। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम, right, I am going to bid on some particular company, right, that their share prices may increase, decrease, right, and thereby I am making a prediction for a future moment in time, right. So this is nothing but long term speculation. हम speculation short term भी नहीं कर रहे हैं, हम लंबे समय के लिए speculate कर रहे हैं that this is going to be the future movement of prices, share prices. So I am engaging into long term speculation, right. Simple सा logic. इफ़ आई एम एंगेजिंग इनटू लॉन्ग टर्म स्पेकुलेशन, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या 2 महीने बाद प्रोबेबिलिटी ये है कि ये घोड़ा, राइट, दिस हॉर्स इज गोइंग टू विन दैट रेस विच इज गोइंग टू हैपन ऑन 3rd of September 2022, right, which means this is definitely more riskier than equity. Yes or no? This is definitely more riskier than equity, but भाई जहाँ रिस्क है वहाँ पर रिटर्न्स है, राइट, बट दिस मे गिव मोर रिटर्न्स, बट दिस मे गिव मोर रिटर्न्स, ठीक है। तो हम बेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि इसके प्राइसेस बढ़ जाएं, बढ़ गए तो बहुत अच्छी बात है, राइट, बिल्कुल करेक्ट बेट है हमारा, लेकिन अगर घट गए तो ऑटोमेटिकली रिटर्न्स आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू इक्विटी, बट दिस मे गिव मोर रिटर्न्स एज कंपेयर टू इक्विटी इन इटसेल्फ, ठीक है। सो ये बना हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर। इसकी ट्रेडिंग क्या होती है, फाइनेंशियल फ्यूचर्स आर बेसिकली ट्रेडेड ऑन स्टॉक मार्केट एंड देयर बाय इट्स रेगुलेटर इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेबी। इसका रेगुलेटर कौन होगा, सेबी ही है। नाउ देयर इज वन वेरिएशन इन दिस इंस्ट्रूमेंट, एक इस इंस्ट्रूमेंट में एक वेरिएशन के साथ एक ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट भी प्रेजेंट है हमारे पास मार्केट में, राइट, विच इज कॉल्ड ऑप्शंस, विच इज मच मोर पॉपुलर एज कंपेयर टू फाइनेंशियल फ्यूचर्स ना। अब देखा होगा आपने, कई बार हम इसका नाम सुनते हैं पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, राइट। सो लेट मी टॉक ऑफ द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट where the underlying asset will remain the same. Okay, so second instrument that we have is options. Now remember the underlying asset here again is shares. So buy कुछ भी हो सकता है, can even be sell, right? 100 shares, 200 shares of again Tata Motors at let's say 120 per share, right? Let's say some other company, Mahindra and Mahindra.
So Mahindra Limited at 150 per share on some futuristic date. So let's say 3rd of September 2022. Right? But यहाँ तक तो ये बना फाइनेंशियल फ्यूचर. Up till this point this is still a financial future. Right? Option कैसे बनेगा? See, option will basically carry a line. Option will basically carry a line. इसके साथ साथ कुछ एक एक्स्ट्रा लाइन जुड़ जाएगी इसमें, right? Because of which this will still remain a contract, but it will give a right to the holder of the contract without any kind of obligation to buy or sell. है ना? तो अधिकार अभी भी है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है. It is not mandatory to execute that order in itself, right? To execute the instrument in itself. So एक तरह से एक पैसेज वे मिल रहा है, राइट, होल्डर को कि वो चाहे तो एंगेज करे, चाहे तो छोड़ दे, राइट. सो बाय है, सो बायर हैज द राइट टू विड्रॉ, राइट, और द बायर हैज द राइट टू कॉल ऑफ द डील, राइट. बायर अगर चाहे तो वो डील को कैंसिल कर सकता है, राइट. सिमिलरली यहां पर क्या होगा? द सेलर कैन पुट ऑफ द डील, ठीक है. सो ये बन गए हमारे पास दो ऑप्शंस. सो ऑप्शन क्या है, राइट? सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करना चाहें, सो ऑप्शंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट which gives the right but not an obligation to buy or sell. ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको. Option is a contract that gives the right but not an obligation to buy or sell the underlying asset. To buy or sell the underlying asset according to the instrument itself, right? Of a futures contract. Of a futures contract. ठीक है. Now, because this is giving an option to the buyer or an option to the seller, obviously there has to be some cost associated to it, है ना. यहाँ पर buyer को या seller को कुछ ऑप्शन मिल रहा है. सो ऑब्वियसली इसके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ कॉस्ट ज़रूर जुड़ी होगी, राइट. इसी कॉस्ट को हम कहते हैं ऑप्शन प्राइस. ऑप्शन प्राइस. सो इफ दिस क्लॉज और दिस एग्जिस्ट्स फॉर द बायर, राइट. मान लीजिए ये जो हमने पैसेज वे क्रिएट किया है, ये जो हमने विद होल्ड करने का जो राइट दिया है, राइट, डील को, इफ दिस एग्जिस्ट्स फॉर द बायर देन ऑप्शन प्राइस विल बी बेयर्ड बाय द बायर ओनली, राइट. और ये नॉमिनल रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वर्थ लेट्स से thousands of rupees, this is going to be let's say just ₹5 per share, ₹2 per share or ₹10 per share. So option price will be very nominal, ₹10 per share, है ना, या ₹5 per share, and this has to be bared by the buyer only for entering into the contract. ठीक है. सिमिलरली अगर मान लीजिए ऑप्शन जो है सेलर के लिए एग्जिस्ट करता है, फिर से ऑप्शन प्राइस है, बट नाउ दिस हैज टू बी बेयर्ड बाय द सेलर. सो सेलर बेयर करेगा, राइट. इससे हो क्या रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द रिस्कियर पार्ट बिकम्स लेस नाउ. सो अगर मुझे कंपेयर करना हो, राइट, आई कैन से ऑप्शंस आर लेस रिस्कियर than
financial futures, but still more riskier than equity. Still more riskier than equity. ठीक है, so options are less riskier than futures, financial futures, but they are definitely more risky than equity in itself. रिस्की क्यों है आप समझो वो एस्पेक्ट, राइट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बायर है, राइट. बायर के लिए ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया दैट द बायर हैज़ द राइट टू विदहोल्ड द डील और ही कैन पुट ऑफ द डील और कॉल ऑफ द डील, वट एवर इट इज़, राइट. सो आप समझ सकते हैं कि एक ऑप्शन प्राइस बेयर किया होगा, राइट. सो दैट पार्ट ऑफ मनी इज ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द पॉकेट. नाउ इफ ही डिसाइड्स टू विदहोल्ड द डील दैट मनी विल फॉर एवर बी लॉस्ट, राइट. सो इज नॉट गोइंग टू गेट अ पेनी बैक. मान लीजिए बायर ने देखा मार्केट में कि भाई जो एक्सपेक्टेशन था दैट आई कैन बाय इट एट ₹120 पर शेयर बट शेयर प्राइसेस रिमेन हाई, राइट, और शेयर प्राइसेस रिमेन लो where he can actually buy the shares at let's say ₹70 only that day, so he's obviously not going to buy it at a premium of 50 per share. मान लीजिए मार्केट में टाटा मोटर्स के शेयर 70 रुपये में बिक रहे हैं और भाई साहब ने जो है इनके पास ऑप्शन है इनके पास 120 पर शेयर का, तो ऑब्वियसली है ना, ऐसे में 120 पर शेयर अगर एग्जीक्यूट करेंगे डील तो 50 का डायरेक्ट लॉस होगा. सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना राइट टू विद होल्ड यूज़ किया और डील को ख़त्म कर दिया, राइट. सो इससे नुकसान कितना हुआ, ₹10 पर शेयर का तो हो गया है, ठीक है. सो अब अगर ये खरीदने जाएंगे मार्केट में भी शेयर्स तो ये 60 तो वो देना पड़ेगा अलग से, प्लस ये 10 जो लॉस हो गया है, राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट in options that risk part basically lowers down as compared to financial futures, but it is still more riskier as compared to equity in itself. ठीक है. Now based on the whichever entity has the right, मतलब जो भी होल्डर होगा जिसके पास राइट एग्जिस्ट करेगी, बेस्ड ऑन दैट पार्ट वी हैव 2 sets of options as I made them, राइट. जैसे मैंने बनाया था ना बिल्कुल वैसे ही 2 तरह के ऑप्शंस एग्जिस्ट करेंगे. सो बाय ऑप्शन है अगर, where buyer, यही हमारा होल्डर, this particular entity has the right to call off, right. so buy option अगर हमें नज़र आ रहा है, राइट, जहाँ पर बायर के पास ये राइट है जहाँ पर वो विदहोल्ड कर सकता है डील को, he can call off the deal, then this will be called as call option. इसको कहते हैं हम call option. so call option gives the holder or the buyer, call option gives the holder or the buyer the right to buy without any obligation to buy. Gives the holder the right to buy but without any obligation to buy, है ना. तो इनके ऊपर से जो ऑब्लिगेशन है ये ख़त्म कर दिया है इसने, मैंडेटरी नहीं है, ये चाहे तो वॉक ऑफ कर सकते हैं डील से, राइट, कॉल ऑफ कर सकते हैं डील को, तो वहीं से नाम पड़ रहा है इसका कॉल ऑप्शन. नाउ इफ दिस इज अ सेल ऑप्शन फॉर द सेलर, right, so the seller can put off the deal, right. so this will be called as put option. This will be called as put option, where the seller or the holder has the right to sell the underlying asset but without any obligation to sell. अधिकार तो है बेचने का, लेकिन चाहे तो वॉक ऑफ भी कर सकते हैं, चाहे तो डील को बंद भी कर सकते हैं कि भाई मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है. नाउ रिमेंबर both call and put option, they are traded in the stock market and that is why the regulator for both these instrument is SEBI only. दोनों के लिए ही जो regulator है वो SEBI ही रहेगा. Next let me take you to the next instrument in the market. Next instrument in the market which is called commodity future or commodity derivatives. Commodity futures or commodity derivatives.
नाम ही बता रहे, राइट, द नेम itself is telling you that the underlying asset here is going to be some kind of commodity in itself. So you mention कर दो, underlying asset is some commodity. Now these commodities can be both, can be agricultural commodities or these can be natural resources. जैसे हमारे पास नेचुरल गैस आ गया, क्रूड हो गया, राइट, और मेटल्स ऑल्सो, ठीक है. सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर बेस्ड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, मेटल्स पर बेस्ड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पर बेस्ड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं. वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज दैट ऑप्शन इज नॉट देयर इन द कमोडिटीज मार्केट. कमोडिटी मार्केट में ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है. सो ऑप्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है? फाइनेंशियल मार्केट में एग्जिस्ट करता है, फाइनेंशियल फ्यूचर्स मार्केट में एग्जिस्ट करेगा. बट हेयर ऑप्शन विल नॉट एग्जिस्ट हेयर इन द कमोडिटीज मार्केट, राइट. नाउ कमोडिटी फ्यूचर्स, द एंटिटीज विच आर एंगेजिंग इन कमोडिटी फ्यूचर्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स, राइट. सो ऑन वन एंड इट इज अलाउइंग वन ऑफ द एंटिटीज टू गेन फ्रॉम स्पेक्यूलेशन. तो एक जो एंटिटी है, खासकर ट्रेडर जो है, राइट, he can gain from speculation, and on the other hand the seller is engaging into this agricultural or commodity futures or commodity derivatives because it is allowing him to hedge the risk. So दो चीज़ें हैं यहाँ पर, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इज बायर एंड सेलर एंगेजिंग इनटू दिस इंस्ट्रूमेंट. बायर का तो हमें समझ में आता है, राइट. बायर अगर खरीद रहा है, इंस्ट्रूमेंट परचेज कर रहा है, देन बायर कैन फर्दर ट्रेड इट फॉर हायर वैल्यू, सो ही कैन गेन फ्रॉम स्पेक्यूलेशन. हम बोला कि फ्यूचरिस्टिक मूवमेंट हाई रहेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, सो ही कैन गेन आउट ऑफ स्पेक्यूलेशन. बट व्हाई इज सेलर एंगेजिंग इनटू दिस? व्हाई इज फार्मर, कंसिडर जनरली से पुअर फार्मर, राइट. सो व्हाई इज दैट पुअर फार्मर बेसिकली एंगेजिंग इनटू दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स? The farmer is engaging into these instruments because this instrument is allowing him to reduce the risk, right, which is called hedging. To reduce his risk, इसी को हम कहते हैं hedging. HEDGING, hedging. So it is allowing him to hedge, है ना. कैसे hedge कर रहा है ये? खासकर एग्रीकल्चर डेरिवेटिव्स मार्केट में तो फार्मर्स जो हैं काफ़ी हद तक अपना जो रिस्क फैक्टर है उसको कम कर सकते हैं, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ फार्मर्स बेसिकली यूज दिस इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलरली. इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, राइट. लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस. नाउ लेट मी अज्यूम दैट इन एन एंटायर ईयर देयर आर 3 एग्रीकल्चरल सीजन्स, राइट. सो एक सीजन जहाँ पर खारिफ की फसल, खारिफ क्रॉप, सेकंड राबी क्रॉप, थर्ड इज गोइंग टू बी लेट्स से खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप हो गया एंड ज़ैद क्रॉप, है ना. सो वी हैव लेट्स से थ्री एग्रीकल्चरल सीजन्स एंड अकॉर्डिंगली द फार्मर इज ट्राइंग टू ग्रो 3 क्रॉप्स X, Y and Z in these 3 seasons, ठीक है. X, Y and Z crop. Now the expected price change in let's say X crop is 10%. The expected price change for crop X is 10%. Can be increase, decrease, anything, right? For crop Y, let's say the expected change is going to be 20%. 20%. 20%. It may increase by 20 or decrease by 20, whatever it is, right? मान लेते हैं decrease कर रहा है. And for Z, the expectation is that it may increase by 15%. इसमें इंक्रीज बाय 50%, राइट. सो हो सकता है कि भाई खारिफ की जो क्रॉप है, द खारिफ क्रॉप देयर प्राइसेस में इंक्रीज बाय 10. मान लीजिए राबी क्रॉप है, राबी सीजन में नॉट बी दैट गुड एंड दैट इज वाई देयर मे बी डिक्लाइन, राइट, बाय 20, राइट. एंड फॉर ज़ैद द चेंज में बी 15%, ठीक है. तो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती हैं. नाउ व्हाट शुड द फार्मर डू? Please try and understand that the farmer will not engage into financial futures of these two. Logically speaking, he will not engage into financial futures of these two.
आप पहले से ही देखो कि यहाँ पर पहले से ही रिस्क फैक्टर कम है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है ना। एक्सपेक्टेड चेंज 10% है, एक्सपेक्टेड चेंज 20% है। सो अगर 10% पे फाइनेंशियल फ्यूचर्स क्रिएट किए, राइट, दैट प्रॉफिट मार्जिन मे नॉट बी एनफ टू एक्चुअली कॉम्पनसेट फॉर लॉसेज अगेंस्ट दीज टू। गेन परसेंटेज उतना होगा ही नहीं कि वो बाकी दोनों का लॉस परसेंटेज को बैलेंस कर दे, ठीक है ना। सिमिलरली अगर यहाँ देखें, मान लीजिए फाइनेंशियल फ्यूचर्स क्रिएट किए, राइट, यहाँ पर कमोडिटी फ्यूचर्स क्रिएट किए, सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट द लॉसेज दैट मे अराइज हियर, राइट, इट काउंटर्स द प्रॉफिट्स दैट हैव बीन मेड इन एक्स एंड जेड। ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर भी रिस्क फैक्टर बढ़ा हुआ है, राइट। देयर बाय द फार्मर इज मोर लाइकली टू कम अप विद कमोडिटी फ्यूचर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्रॉप। सो कोशिश करेगा कि यहाँ पर कमोडिटी फ्यूचर्स क्रिएट किए जाएं, राइट, डिफरेंट वैल्यूज़ के, सो दैट ही इज़ एबल टू बैलेंस ऑफ हिज रिस्क, राइट। मतलब यहाँ से जो भी प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन बनी एक्स और वाई क्रॉप से, राइट, वो रिस्क जो है ना, जो उसका लॉस परसेंटेज है वो रिड्यूस डाउन कर जाए, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन था 10% इंक्रीज़ का, वो 10% इंक्रीज़ है, ये 20% डिक्रीज़ का था, राइट। सो नेट मान के चल रहा हूँ कि 10% के आसपास लॉस की सिचुएशन है ना। तो सिंपली क्या करें, यहाँ से अपने जो कमोडिटी फ्यूचर्स हैं, कमोडिटी के स्पेसिफिक, क्वांटिटी के स्पेसिफिक बना दे इंस्ट्रूमेंट्स, सो दैट इट इज़ एबल टू काउंटर द लॉसेज ओवरऑल दैट हैव बीन एक्यूमुलेटेड इन दीज टू। सिंपल है ना। इसी को बोल रहे हैं हम हेजिंग, रिड्यूसिंग द रिस्क, रिड्यूसिंग द रिस्क, राइट। ये हम भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वी ऑल्सो डू दिस, राइट। सो आपके पास भी ऑप्शंस रहते हैं ना, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस एट टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव अपॉइंटेड अ न्यू कुक, आपने एक नया कुक अपॉइंट किया, अब आपको नहीं पता कि कैसा खाना बनेगा, राइट। सो व्हाट डू? यू विल गो आउट इन द इवनिंग एंड यू विल मेक श्योर दैट यू हैव समथिंग टू ईट एट नाइट एट लीस्ट। तब क्या करोगे, बाजार जाके 2 मैगी के पैकेट ले आओगे, राइट, या ब्रेड बटर ले आए, राइट, सो दैट इफ द कुक बेसिकली मेक्स अप द फूड, राइट, टू बैड टू ईट, देन एट लीस्ट यू हैव समथिंग एल्स टू सर्वाइव ऑफ। वही कहानी यहाँ पर भी कर रहे हैं, राइट, कि हम अपना रिस्क परसेंटेज रिड्यूस कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर रिड्यूस कर रहे हैं बाय मेकिंग श्योर दैट एटलीस्ट देर आर सर्टेन गेन्स दैट कैन अराइज फ्रॉम अदर एवेन्यूज। इतना हाई भी ना हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल लॉसेज हो गए तो इतना हाई भी ना हो कि वो सरमाउंट ही कर जाए लॉसेज को, राइट, ऐड कर दे प्रॉब्लम्स को। सो दैट इज द फाइनल गोल हियर। सो रिमेंबर दैट the proposition why these two entities are engaging into commodity derivatives is that one entity will gain out of speculation, whereas the other entity will be able to lower down the risk, will be able to hedge using the instrument. Now remember that commodity derivatives are traded at 2 major stock exchanges, right? So इनके exchanges भी अलग अलग है हमारे पास। I think आपको याद होगा, I specified this when I was teaching you stock market. So stock exchanges दो कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे? First we have NCDEX, National Commodities Derivatives Exchange of India, NCDEX, and the other one is MCX, Multi Commodity Exchange, Multi Commodity Exchange, ये है National Commodities Derivatives Exchange of India, right? So agri derivatives, agricultural commodity based derivatives are traded on NCDEX. ठीक है, एंड MCX पर ट्रेडिंग होती है मेटल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड डेरिवेटिव्स की, मेटल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड डेरिवेटिव्स। ठीक है, both are operational since 2003, right? So you can log in, you can actually look this up. ऑनलाइन भी आप जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, राइट। बट आई वुडंट सजेस्ट लुकिंग दिस इनटू, आई मीन डोंट गो फॉर रिसर्च हियर बिकॉज वी हैवंट सीन क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट येट, ठीक है। कमिंग टू द रेगुलेटर पार्ट, है ना, रेगुलेट कौन करेगा इस इंस्ट्रूमेंट को? सो अर्लियर वी हैड समथिंग कॉल्ड एज फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन। पहले हमारे पास FMC नाम की एक बॉडी थी, फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन, FMC, Forwards Market Commission. So Forwards Market Commission used to be the regulator of this market and regulate the instrument. But
Later, this body was merged with RBI. Merged with RBI. Right? So RBI के अंडर एक ब्रांच है हमारे पास जहाँ पे FMC ऑपरेट करता है. Right? FMC से ही हमारे पास इनपुट्स आती हैं. Where RBI will basically tell the regulator now, which is SEBI, right? SEBI to take action, and thereby SEBI will go for banning of these different forms of commodity derivatives also. ठीक है. So अब ये in tandem ऑपरेट करते हैं. RBI बेसिकली बताता है कि भाई बहुत वॉलेटिलिटी हो रही है प्राइसेस में, राइट. आई कैन सी इट फ्रॉम मार्केट्स, फ्रॉम डूइंग द सर्वे एटसेट्रा, फ्रॉम माई रिपोर्ट्स, एंड देयर बाय विल प्रिस्क्राइब सेबी दैट यू नीड टू टेक एक्शन. आप एक्शन लो, राइट. क्या करेगा रेगुलेटर? विल जंप इन एंड दिस विल सिंपली बैन द commodity derivatives trading itself. Now while we are on the subject of regulator and instruments and market, right, I would also like to talk about a few other things also. So मार्केट में हमारे पास कुछ तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका रेगुलेटर है, राइट. मार्केट डिफाइंड है, इंस्ट्रूमेंट्स डिफाइंड है, एंड दैट इज़ वाई वी हैव रेगुलेटर ऑल्सो इन प्लेस टू कीप अ चेक. बट देर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स इन द मार्केट विच आर मोर इन द नेचर ऑफ ओवर द काउंटर ट्रेडिंग, है ना, जहाँ पर आपका मुँह जबानी चल रहा है ना. दो लोग मिले, आपस में एक दूसरे से बात करी और कुछ नेम, नंबर्स, फिगर्स लिख लिए, स्पेसिफाइड क्वांटिटी लिख ली अपने पास, स्पेसिफाइड प्राइस लिख लिया, डेट लिख लिया, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम अ ट्रेडर, राइट. आई डील इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, राइट. आपने सुना होगा एक शब्द होता है हिंदी में, आड़ती कहते हैं. मेजर अर्बन मार्केट्स में आपको सुनने को मिलेगा. सो व्हाट डू दीज आड़तीज डू, राइट. दे बेसिकली गो टू दीज रूरल रीजन्स एंड दे विल टॉक टू द फार्मर. सो फार्मर के पास जाएंगे और पूछेंगे एक्सपेक्टेशन क्या है, हाउ मच ऑफ क्रॉप आर यू एक्सपेक्टिंग दिस ईयर. Farmer says, okay, I'm expecting close to 120 kgs, 100 kgs, 300 kgs, whatever, right? So बोल दिया, how much would you like to sell it to us? So लिख दिया number, 200 kgs, let's say on this particular date at this price, right? So अब ये क्या है? This is not being done through the market itself. कुछ formal channel नहीं है, right? This is more in the nature of over the counter trading. दो लोग मिले, आपस में एक दूसरे से बात करिए, मुँह जबानी कुछ numbers, figures note down कर दिए गए, right? So these are informal market instruments. अभी तक जो हम बात कर रहे थे, these are all formal market instruments, right? I want to talk about this particular instrument because this is something that we find in our economy. हमारी इकोनॉमी में ये बहुत prevalent है, right? Especially in the commodity market. Especially in the commodity market. And this instrument is called forwards. Forwards, है ना. So हमने डायरी में लिख लिया that this much quantity at this price on this date. Now I travel, right? I come back to urban areas and I now start talking with wholesalers in urban areas, right? So I can speculate, I can tell them that the future expectation regarding prices is not that good. Prices are bound to increase, the crop is going to face failure, there may be not monsoons, there may be not enough rains, this, that, right? Story sunaya. And then I tell them that, see, I know a farmer in this region. In fact, not just one, I know 8 farmers who have, let's say, close to 5 quintals of what you require, what you sell. And thereby, I can give you their name and address, right? And you can purchase this much quantity from them on these dates. And then I may charge a price for it. So हमने क्या किया, उनसे कुछ प्राइस चार्ज कर लिया, है ना. For let's say ₹5 per kg, ₹2 per kg, ₹10 per kg. तो ये क्या बन गया? Now this becomes an informal market instrument. ये बन जाएगा, इसको नाम हम देते हैं, this is called as forwards. Forwards. Remember, this is an informal market instrument. Informal market instrument है where over the counter trading is take place. Over the counter trading is take place, and because over the counter trading is take place, there cannot be any regulator here. यहाँ regulator की कोई भूमिका ही नहीं है. क्या regulate करेगा, है ना. There is nothing in the middle, there is no formal instrument in the middle, right? So just as we have commodity futures as a formal instrument, parallelly, informally, we also have forwards that also circulate in the market, है ना. So क्या होता है कि forwards अपने आप में responsible हैं
एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में वॉलेटिलिटी लेके आने के लिए प्राइसेस में, ठीक है. सो व्हेन यू गेट टू सी दैट टोमेटोज, राइट, देयर प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग, अनियंस प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग, 150 पर केजी चला गया. कैसे चला गया? क्योंकि हम फार्मर के पास गए, फार्मर इज गेटिंग 10 रुपीज़ पर केजी, टोमेटो के लिए 2 पर केजी, स्टिल इन द मार्केट इट इज सेलिंग फॉर 90 पर केजी. हाउ इज इट सेलिंग फॉर 90 पर केजी? बिकॉज दैट ईयर दीज पीपल दे मस्ट हैव प्लेड अ रोल, है ना. ये इंस्ट्रूमेंट ने बहुत अच्छा स्पेसिफिक इसने रोल प्ले किया है. इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से खराब रोल प्ले किया है, राइट, बट इसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है. दे मस्ट हैव बीन ट्रेडेड अ लॉट, राइट, and at each end some profit must have been generated by selling the instrument in itself, which has led to the market price in itself increasing. जो खरीदने वाला है उसी ने अपने आप बेस प्राइस बहुत हाई पे खरीदा हुआ है, तो कैसे ये सस्ते दामों में बेच सकता है, राइट. सो फॉरवर्ड्स एट टाइम दे आर ऑल्सो द कल्प्रिट फॉर लीडिंग टू इन्फ्लेशन इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ प्राइसेस, ठीक है. और इसी को लेके चिंतित भी रहते हैं कई बार. सो see what happens is when SEBI goes for a ban on formal market instruments, it is also an indication for informal markets not to trade, है ना. अब कितना इफेक्टिव रहता है, that is again a subjective question, ठीक है. Okay, so guys, next we come to currency futures or currency derivatives. Currency futures or currency derivatives. The name itself is telling us what is the underlying asset. So underlying asset here is going to be foreign currency, some foreign currency. So कुछ भी ले लो, डॉलर, पाउंड, यूरो, anything that you want, right? So what is currency future? Currency future simply becomes a contract to either buy or sell one or more foreign currencies against the other in some specified quantity at a specified price on a specified date. So क्या बन गया ये? This is a contract to buy or sell a foreign currency against domestic currency, right? या against any other currency, can be domestic also, in specified quantity at specified price on specified date. So I need 3 things here, right? 3 चीज़ों की आवश्यकता है हमें यहाँ पे. क्वांटिटी पता हो, प्राइस पता हो, डेट पता हो. अंडरलाइंग एसेट क्या होना चाहिए? फॉरेन करेंसी होना चाहिए अगेंस्ट एनी अदर करेंसी. देन आई विल कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट एज करेंसी फ्यूचर्स. करेंसी फ्यूचर्स, ठीक है. सो दिस बिकम्स माई इंस्ट्रूमेंट. ये बन गया हमारा करेंसी फ्यूचर. करेंसी फ्यूचर्स दे आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक मार्केट ओनली, राइट. सो ये स्टॉक एक्सचेंज पर ही इनकी ट्रेडिंग की जाती है. So regulator कौन होगा? Who is going to be the regulator here? There are 2 things, right? First of all, they are being traded on stock exchange. Secondly, foreign currency is also involved, right? So this instrument is jointly regulated by both RBI and SEBI. RBI and SEBI. RBI and SEBI jointly will regulate this instrument. Now, which set of entities are going to use this instrument? Which set of entities will participate in trading of this instrument? By ऐसी entities, right? Those set of entities which may require foreign currency or which may have foreign currency which they want to sell out, right? So ऐसी entities क्या हैं? These entities are nothing but importers or exporters. Importers and exporters. So importers and exporters, they are going to use this instrument. And why are they using this instrument? Importers and exporters use this instrument
use this instrument to hedge against exchange rate volatility. To hedge against exchange rate volatility. You know, abhi for example, very recently what we are witnessing is that rupees value is going down. You know, even though in last couple of days it has, I mean, stopped, थोड़ा रुक गया है, right? और value थोड़ी बढ़ी है. But हाँ, at least in the past 4-5 months, what we have seen is that a lot of foreign capital is flown out, because of which rupees value is depreciating in the market. So from somewhere close to 76, 77, it has gone down to almost 79, 80 टच कर रहे हैं अब तो. सो मान लीजिए इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, राइट? इंपोर्टर को क्या करना है? इंपोर्टर बेसिकली वांट्स डॉलर्स सो दैट ही कैन इंपोर्ट, एंड एक्सपोर्टर, राइट, ही इज गोइंग टू एक्सपोर्ट हिज गुड्स एंड देयरबाय विल हैव डॉलर्स इन द फ्यूचर, and both of them will have their own business models, right? The importer feels that he has a leeway, that he can purchase dollar up to rupees 78, 78 रुपए तक खरीद सकता है भाई, right? If this increases, then his profit making is going to take a hit, because of which, right, his business may face consequences. Business में losses बढ़ सकते हैं, right? Maybe possible that he may have to fire people, he may have to close down the company, right? तो भैया उसने अपना एक रेशो निर्धारित कर लिया. He set up some kind of reference level that I can purchase dollar for as high as rupees 78, not beyond that, because this will definitely dent my business. Similarly, exporter is also sure, right, that he wants at least rupees 77. He wants at least rupees 77. He cannot go below this. If he goes below this, then, right, this person may not even go for producing the commodity next year, may not produce, and thereby may not export in the future, right? So what do these two do? Both of them, they engage into this market. अब ये दोनों इस मार्केट में engage करते हैं, right? अब देखो दोनों का बिजनेस मॉडल तय है, right? ये कह रहा है कम से कम 77 तो चाहिए, right? So if he is going to sell the dollar, he will sell it for at least 77, and he says that I can buy it for maximum of 78. Both of them agree कि काम करते हैं 77.5 पे फाइनल करते हैं, that I will purchase dollar from you on this date, right? On this date, these many dollars for this much price, and both of them are happy. Both of them have been able to lower down their risk, right? वही हम कह रहे हैं that importer and exporter, they use this particular instrument to hedge against ER volatility, or to reduce their risk with respect to increase or decrease in the exchange rate.